Hello children, I am Kusum Dubey, teaching in Rajawadi, Mumbai Public School. Today's topic is the expanded form of a number. Dear children, we have learned in standard 3 the expanded form of 3-digit number. Today we are going to learn expanded form of 4 or 5-digit number. Dear children, here is the number. Can we write it in an addition? Yes? Yeah. That is what? Expanded form. Right? Read this number. This is 4-digit number 5324. This is unit, tens, hundred and thousand. Dear children, in this number 5 is 1000. So, how will you write 5000? Here is after 5 3 digits. So, put here 30. है ना? थर्ड में हमने ऐसे ही पढ़ा है, राइट? तो उसके बाद then put here plus sign, then go to the next number. Here this is 3 and 3 is in place of 100. So how will you write this? 300. It means write 3 here and here is 2 digit left. So put instead of 2 or 4 put here 0. This is 300. Right. Okay. Then again put sign plus here and then go to next number. This is 210. 210. 210 means what? 20. Right? Okay. So 210, write 2 and again if you are confusing here, then remember what is next number? How many digits are left after 2? There is only one digit. So put 10 here. So it will become 20. Then put here again plus sign and here 4. So write 4 here. This is what? This is expanded form of 5324. Right? This is 4-digit number. So see the next example. Right here 78,999. This is 5-digit number, isn't it? Okay. So how will you expand it? How will you write in expanded form? Yes, right. First of all, put here unit, tens, hundred, thousand and 10,000. Dear children, 10,000. Remember. So, this is 10,000. 710 means what? 70. Right? So, put here 70 first and then 1000. Yani 30. Right? Then, what is the next step? Put here plus sign. Right? Then, go to the next number. 8,000. This is 8,000. So write 8 and as I told you before, if you are confusing, then count the number after 8. 1, 2, 3. So put here 30. Okay, this will become 8,000. This will become 8,000, right? Then plus again 900. 9 and for 100, 20. Then again plus 90. 90, 9 and 0. Okay. Then next number. Next and last number is 9. So write here 9. Okay. This is the expanded form of 78,999. Got it? Okay. So let's do our exercise.
So dear children, in exercise question number 1, write the following numbers in the expanded form. है ना? ठीक है. फर्स्ट नंबर हमारा 7545. 7545. Okay? Remember, 7,000. 5 is 100. This is 10 and this one is unit. Okay? So, start writing 7,000. 7,000. This is 7 and 1,000. Plus 500. 500. Then again plus 40 and then 5. Right? Okay? Go to the next. 4,000 and see here. There is no number in 100 place. So 0. 5, 10 and this is again in unit place. What is this? 0. Yeah, right. Then start writing. This is little bit difficult, isn't it? But no. Let us see. This is 4,000, right? Write here 4 and 4,000, 30. Right? Okay. Then put here plus sign. Here no number for 100 place. So put here 0 and for 100 20. इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा टेंस पे जाएंगे. नो, आपको वहां पे प्लेस वैल्यू उसका लिखना पड़ेगा 0. ठीक है? देन प्लस 5 tens मीन्स 5 10 मतलब कितना होता है 50. करेक्ट. देन अगेन 0 पे यूनिट प्लेस पे 0 है ना, तो 0 हमको लिखना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि यहाँ हम कुछ नहीं लिखेंगे, नहीं, यहाँ लिखेंगे 0. ठीक है? अगर हम इसका प्लेस वैल्यू कुछ भी यहाँ पे 0 भी नहीं लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा बेटा. सो पुट हियर 0. ओके? सो नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, पर ये 5 डिजिट है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. ठीक? ओके. 82,727. देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पे यूनिट, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000. ठीक है? हमने यहाँ पे लिखा है, तो आगे के नंबर लिखते समय एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते समय आसानी हो जाती है. 8 10,000. 8 10 का मतलब कितना होता है 80. राइट? 8 10 का मतलब 80 हो गया. और उसके बाद क्या है 1000. 1000 के लिए हम कितना रखेंगे 0 3. ओके, गुड. नेक्स्ट, देन अगेन 80,000 हो गया, प्लस उसके साथ 2,000 भी है, तो राइट हियर 2 एंड अगेन 30 for 1000. देन प्लस 700 7 and for 100 20. Then again plus 210. 210 means 20. 210 यानी 20 यहाँ पे आ गया, फिर से प्लस साइन, और लास्ट यूनिट प्लेस पे है 7, तो राइट एज इट इज. ओके? सो 80,000 2,000 ये दोनों मिलके कितना हो गया 82,000. 82,000, right? Then 700 2 tens means 20 and plus 7 यानी 27. Got? Okay. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को 10 नंबर्स दिए हैं. यहाँ से मैंने 3 आपको करके दिखाया है, आगे के आपको खुद से करने हैं. हाँ, हम अब सेकेंड क्वेश्चन पे जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में डियर आप लोगों को एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है और उसको आपको नंबर लिखना है. हाँ, क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, राइट द नंबर
write the numbers from their expanded फॉर्म. ओके, हमें जो नंबर दिए हैं वो एक्सपांडेड फॉर्म में हैं और उनको हमको नंबर्स लिखने हैं, इकट्ठा करके लिखना है. ठीक है ना, एक्सपांड करके दिया है उसको हमको इकट्ठा करना है. समझा? ठीक. अब देखते हैं एक बार एग्जाम्पल. यहाँ पे लिखा है 3000 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 7. ऐसे ही तो लिखा था हमने क्वेश्चन नंबर 1 में. नंबर दिया था, उसको एक्सपांड करके लिखा था. ठीक है, अब उल्टा दिया है. यहाँ एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा है, हमको उसे नंबर में लिखना है. सो डियर, सबसे पहले 3000. तो यहाँ पे अगर नहीं समझता है तो लिख लो 1000, 100, टेंस एंड यूनिट. है ना? देखो 1 2 3 4 4 डिजिट नंबर है. 4 डिजिट नंबर के लिए हमने 4 डिजिट यहाँ पे लिखा. उसको लिखते कैसे हैं? 3000. तो ये 3 कहाँ आएगा? 1000 के प्लेस पे. ये लिख दिया 1000 के प्लेस पे. ठीक. अब यहाँ पर आ गए 200. ठीक है, तो 2 कहाँ आएगा? 100 की प्लेस पे. ओके. 50 यानी 5 आएगा टी के नीचे टेंस में. और लास्ट वन है हमारा 7 कहाँ आएगा? 7 कहाँ आएगा? यूनिट प्लेस पे. राइट? तो राइट हियर 7. इसको कैसे पढ़ेंगे? 3257. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं. यहां पर 10,000 प्लस 5,000 अगेन. ओके, प्लस 1. Dear children, there is no 100 and no tens. Right? Here is 10,000, 5,000 and 1. तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर हम ऊपर लिख लेंगे. ओके, पहले लिख लेते हैं 10,000, क्योंकि यहाँ 10,000 दिया है ना. तो इसके बाद 1000 का प्लेस है तो हम वहां पे लिखते हैं 1000. 1000 के बाद क्या आता है? 100. ओके, फिर टेंस, फिर यूनिट. राइट? ओके, अभी 10,000 यहाँ पर है. ठीक है, उसकी जगह पे हम 10 लिख देंगे. ठीक है, प्लस 5 है. ओ, फिर हम 10 लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा. यहाँ 10,000 और 5,000 को मिला के लिखना है. तो 10 ना लिख के हम क्या करेंगे? यहाँ पर 5 लिख देंगे. 110 हो गया. अगर यहाँ पे आप 10 लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी 10,000 है ना. तो हम सिर्फ 110 लिखेंगे. 110, यहाँ पे 110 है. ठीक, फिर हमने लिखा 5,000. अब यहाँ पे 100 पे कुछ नंबर है नहीं है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 0. टेंस पे कोई नंबर है नहीं है, तो यहाँ भी लिख देंगे 0. अब आगे आएंगे 1 इज द यूनिट. सो यूनिट पे लिखेंगे 1. समझा? अगर आप यहाँ पे 10 लिख देते तो रॉन्ग हो जाता, क्योंकि इट इज ऑलरेडी 10,000. तो यहाँ पे 110 है तो 1 लिख दिया, इट मीन्स 10,000 हो गया. और प्लस 5,000 है तो ये हो गया 15. 10 एंड प्लस 5 15. और 100 के लिए तो कोई नंबर ही नहीं है वहां पे, है ना. टेंस के लिए भी कोई वैल्यू नहीं है, कोई नंबर नहीं है. तो दोनों की जगह पे हमने 0 लिख दिया और लास्ट में लिखा 1. ठीक. अच्छा, आगे देखते हैं. थर्ड, यहाँ पर है 4,000 प्लस 500 प्लस 10 एंड प्लस 3. कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा ऊपर का देखना है. 10,000. अब यहाँ पर 4,500 10 3. ओके,
अगेन अभी यहाँ पे 4000 है, यहाँ पे 10,000 का नाम है क्या, काउंट कर लो ना, अगर ऐसे भी नहीं समझता तो काउंट कर लेते हैं। 1 यूनिट, टेंस, 100, 1000 है ना। तो 10,000 का कॉलम हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा लिखेंगे 1000, उसके बाद 100, फिर टेंस, राइट, फिर यूनिट। ओके, अब देखो ये क्या है, 4000, राइट, then write here 4,000. Okay, then go to next number 500. To put 5 here, 500. Then it is 10. तो अगेन आप 10 नहीं लिखोगे, यहाँ 10 प्लेस पे सिर्फ 1 लिखोगे, है ना। तो राइट हियर 1 10 मीन्स 10, है ना। जैसे यहाँ पे हमने 10 नहीं लिखा था, 1 10,000 मतलब 10,000, है ना। तो वैसे ही 1 हो गया, हाँ 1 मतलब 1 10 हो गया, प्लस यहाँ पे 3 है तो 3 लिखा। अब हो गया 4,513। तो आई होप ये अब आपको कैसे लिखना है समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। Question number 3. Question number 3. Some digits and their places in the number are given below. Write down the numbers they make. बच्चों जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, जैसे एक नंबर समझ जाओ, यहाँ पे हमने लिखा 5 2 3 1 4, ठीक है। अब मैंने पहले भी बताया था अगर 5 डिजिट है तो स्टार्ट करना है 10,000, 1000, 100, 10 एंड यूनिट, है ना। अब ये तो हमने लिखा, अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है वो हमें लिखना है। अगर मैंने सिर्फ लिखा 5TTH, इसका मतलब क्या हुआ, 5 10,000, 5 10 का मतलब 5 टाइम 10 मतलब 50, है ना। ये 50,000, इसको अगर लिखना होगा तो हम लिखेंगे 50 और 1000। अगर मुझे पूछा गया इसका प्लेस वैल्यू क्या है ना, तो हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 50,000। सेम अगर प्लेस वैल्यू ऑफ 2 पूछा तो 2 लिखा है और मान लो यहाँ लिख दिया TH, तो क्या पढ़ेंगे 2000, उसका प्लेस वैल्यू हो गया। वो पहले भी जब हम नंबर फॉर्म कर रहे थे, डिजिट जो 5 या 6 डिजिट दिया था इसके पहले वाले एक्सरसाइज में, है ना, तो हम क्या करते थे, उसका अगर नंबर का प्लेस चेंज कर देते थे तो उसका प्लेस वैल्यू भी चेंज हो जाता था, है ना। तो जब यहाँ पर इसका प्लेस वैल्यू का महत्व है बच्चा, तो 2000 मीन्स व्हाट, यस 2TH लिखा है तो इसका मतलब 2000, तो पुट हियर 30 एंड ये इसका प्लेस वैल्यू हो गया, ठीक है। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन में भी ऐसे ही दिया है क्वेश्चन, जहां पर हमको उसका प्लेस वैल्यू लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया है फर्स्ट में आपको 7U, याद रखो बच्चा ये क्या है, यूनिट, ओके। देन 210, ठीक है। देन 5TTH, फिर 3H, फिर 2T एंड 2T, राइट, ओके। 2T लिखा है, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 7 जो है वो यूनिट प्लेस पे है, पहले यहाँ लिख लो ना 10,000, फिर 1000, 100, 10 एंड यूनिट। अब ये 7 क्या है, यूनिट है, तो पुट हियर 7, ओके। 2 क्या है, T है, तो पुट हियर 2। अब 5 क्या है, 10,000 है, तो पुट हियर 5, हाँ, देयर इज नो 1000, तो पुट हियर 0, है ना। चलो फिर से एक बार देखते हैं और एग्जांपल्स।
3h 4th 5t 1th। ओके, ये आपका सेकंड क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का। हाँ, तो क्या करना है आपको, मैंने जैसे कि बताया, पहले काउंट करो 1 2 3 4। हाँ, अगर TH दिया है तो आपको TH तक लिखना पड़ेगा। यहाँ TH दिया है तो TH तक लिखना पड़ेगा। TH यानी 10,000, फिर 1000, फिर 100, टेंस एंड यूनिट। पहले ऐसे लिख लो तो लिखना नंबर आसान हो जाएगा। अब हमें देखना है कि यहाँ 10,000 वाला कोई नंबर है? यस है, यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखो 1, ठीक है। 5t तो यहाँ लिख दो 5। 4,000 तो यहाँ लिख दो 4, और 300 तो यहाँ लिख दो 3। अब यहाँ पर अगेन देखो, कहीं पे भी यूनिट वाला नंबर नहीं दिया, यू करके दिया है, कहीं नंबर नहीं दिया है, तो यहाँ पे सिंपली आप 0 लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका नंबर 14350, मतलब क्या, 14,350। ठीक है, ओके। और एग्जांपल देख लेते हैं इसी एक्सरसाइज का ही थर्ड। थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ओके, 5th मतलब 1000। ओके, उसके बाद लिखा है 70th मतलब 10,000। 10,000 यानी 70,000 हो जाता है वो। उसके बाद 3h यानी 300, फिर 2t यानी 20, और उसके बाद 4 वैसे ही रहेगा क्योंकि u है, u यानी यूनिट प्लेस पे, 4 है तो यूनिट नंबर है वो। ओके, अब यहाँ पे TH दिया है यानी 10,000 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे TH यानी 10,000 वाला प्लेस, फिर लिखेंगे 1000 वाला, फिर 100, फिर टेंस, फिर यूनिट। अब देखेंगे पहला कौन सा नंबर है, 5th यानी 5,000 में 5,000 वाले के नीचे लिखेंगे 5। 10th यानी 10th का मतलब होगा 7, यहाँ पे है तो 7 10 यानी 70,000, लेकिन 70 यहाँ नहीं लिखोगे, नहीं तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। आप सिर्फ लिखोगे 7। ओके, फिर उसके बाद 100 में 3 2 एंड 4 यानी 75,324। समझा बच्चों? तो आगे के एक और 2 क्वेश्चन रह गया है, वो आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम जाते हैं प्लेस वैल्यू, जो कि मैं पहले ही समझा चुकी हूँ, लेकिन एक्सरसाइज में हम एक बार देख लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को नंबर दिया रहेगा, जैसे एक्सरसाइज में है आपके राइट प्लेस वैल्यू ऑफ द, अंडरलाइन जो किया है नंबर, उसका आपको प्लेस वैल्यू लिखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन फर्स्ट में है 1999। अब यहाँ पे 9 को अंडरलाइन किया है, अब इसको आपको प्लेस वैल्यू लिखना है। ठीक है, अब देखो मैंने पहले भी बताया था यूनिट 10, 100 एंड 1000। आपको आसान हो गया। 90 का मतलब क्या हुआ, 9 टाइम 10, 9 टाइम 10 रहेगा तो कितना हो जाएगा, 90, राइट। तो आप आंसर सीधा लिख सकते हो 90। आसान है ना? ओके, सेकेंड देखते हैं 2345। ये हमें नंबर दिया है और अंडरलाइन कहाँ किया है, 2 के नीचे, है ना। अभी देखो मैंने पहले भी कहा वैसे ही करना, यूनिट 10, 100 एंड 1000। तो ये 1000 वाले प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, जैसे हम रीड करते हैं 2000, तो यहाँ पे भी आप लिखोगे 2 और 1000 के लिए कितना 0, 3 0, 1 2 3, ये हो गया इसका प्लेस वैल्यू। आसान है। ओके,
सो ये एक्सरसाइज भी आपको सॉल्व करनी है। आज के लिए यहाँ तक ही, आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।